Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In the previous video, we studied about the topic the thorn forest and also the other topic the tidal forest or mangrove forest. And also we discussed about the mountain forest vegetation of the Himalayan region. These are the topics which we discussed in the previous videos, and today we are going to discuss the other part of chapter 23 India natural vegetation we have discussed, and today we are going to start a new topic that is wildlife. Okay, we will discuss about the wildlife of our country, and also we know that our country is the wildlife in our country is national heritage, and also India is rich in various types of or various kinds of wildlife, wild animals and also birds, and they are especially found in our Indian forests. Okay, so let's start our new topic, that is wildlife. Okay, so open your book, page number 151, wildlife, wild animals. The wildlife in our country is our national heritage and asset. It is said here that wildlife in our country, we are talking about our country, means India. This wildlife is our national heritage and also asset. हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति है, हमारी wealth है. India has a rich and varied wildlife. हमारे पास हमारे इंडिया में बहुत तरह के, और हम धनी हैं. किस फील्ड में धनी हैं? वाइल्ड लाइफ के फील्ड में धनी है. एंड ऑल्सो various and also different kinds of what are found here? Various kinds of wild animals. Not only animals found, but also various types of birds are also found in our Indian forest. यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं, बर्ड्स भी पाए जाते हैं. वो भी कहाँ पाए जाते हैं? हमारे इंडियन फॉरेस्ट में. देयर आर, so let us see some important animals. Elephants, rhinoceros, tigers, lions, etc. India is the only country in the world that both in lions and tigers are found. यह कहा जाता है कि हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पूरे दुनिया में, जहाँ पर दोनों मीन्स बोथ लायंस और टाइगर्स दोनों पाए जाते हैं. लायंस ऑफ गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. आपने गिर फॉरेस्ट गुजरात में देखा है मैप में. आपको पता है कि गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है वो किसके लिए फेमस है? लायन के लिए फेमस है. आर वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जाना जाता है. टाइगर्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन. और जो टाइगर्स है किस एरिया में पाए जाते हैं? हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो हिमालयन रीजन है, जो ऊपरी का हिस्सा है. द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल. फॉरेस्ट में हमारे इंडिया के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, प्लस वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं. सो लेट अस सी थ्रू मैप हिमालयन रीजन्स. आप देख रहे हैं. सो लेट अस सी. आपको हिमालयन यहाँ से दिख रहा है ना? यहाँ इस एरियाज के क्या है, ये क्या पाए जाते हैं? सम ऑफ द टाइगर्स. ठीक. एंड ऑल्सो अगेन वी मूव टूवर्ड्स वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर सुंदरबंस आपको यहाँ दिखाई दिया. ये देखिए सुंदरबंस. ठीक है. फेमस फॉर what? Tigers. A large variety of deer and antelope, monkeys and langurs,
wolves, jackals and hyenas are found in the hills. और इन हिल्स पर, इन हिल एरिया पर क्या क्या पाए जाते हैं? और भी कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि आपके वेराइटीज ऑफ डियर हो गए, एंटीलॉप हो गए, मंकीज हो गए, लंगूर्स हो गए, और आपका उल्फ्स हो गए, जैकाल्स हो गए, और हाइनास, ये सब सारी चीज़ें एनिमल्स हमारे हिल्स पर पाए जाते हैं. वी हैव मोर देन 80,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. यह भी कहा जाता है कि हमारे पास 80,000 से भी अधिक एनिमल्स की स्पीसीज है. ठीक. We have also a large variety of birds, near about 1200 species. और यही नहीं, एनिमल्स की ही स्पीसीज नहीं है हमारे पास, हमारे पास बर्ड्स की भी स्पीसीज है, जिनकी जो नंबरिंग है 1200 स्पीसीज हैं. किसकी? बर्ड्स की. Among such birds is the peacock, which has been declared as our national bird. And among all these birds, peacock is our national animal, जिसको peacock को हमने नेशनल राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना है. Thousands of tourists visit India to watch these birds and animals in their natural state. और हमारे यहाँ जो हजारों की संख्या में बाहरी देशों से पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं इन बर्ड्स और एनिमल्स को देखने के लिए. उनको किस स्थिति में देखने के लिए? उनको अपनी स्थिति में एज इट इज, जैसे वो जंगलों में रहा करते हैं, ठीक उन्हीं उसी स्थिति में वो देखने आते हैं. अदर कॉमन बर्ड्स आर, और भी कई बर्ड्स हैं जो कॉमन हैं. मैना, बुलबुल एंड पैरट, कैमल्स, वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द थार डेजर्ट इन राजस्थान. थार डेजर्ट यहाँ पर पाया जाता है, फिर गुजरात में भी पाया जाता है. ठीक है. थार ये आपका राजस्थान में पाया जाता है, प्लस गुजरात में भी पाया जाता है. एंड थार रीजन एंड इन गुजरात, एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस रूम इन आसाम, केरला एंड कर्नाटका. और राइनोसोरस और एलिफेंट्स कहाँ कहाँ आपके पाए जाते हैं? आपके आसाम में पाए जाते हैं. आसाम कहाँ है? आसाम यहाँ पाए जाते हैं. वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं. और कहाँ पाए जाते हैं बेटा? बहुत है. केरला, केरला आपको दिखाई दे रहा है, केरला. और भी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका. केरला एंड कर्नाटका. कर्नाटका you have seen in this area here, okay, and also Assam. Okay, these areas are famous for what? Elephants and rhinoceros. A large number of rare birds and animals have become extinct due to the reckless destruction of forests and guns of the greedy hunters. And also you have seen that some of the important birds and animals become or come to be an end. कुछ ऐसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जिनकी संख्या बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर है. ठीक है. वो क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ जानवरों का शिकार किया जाता है बेवजह, लालची शिकारियों के हाथ से उनको गन का शिकार होना पड़ता है. ठीक है. एज अ रिजल्ट सम ब्यूटिफुल स्पीसीज लाइक, और इसका रिजल्ट क्या मिला, इसका परिणाम क्या मिला कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं, जैसे कि आपके स्पीसीज लाइक चीता, राइनोसोरस, मास्क डियर, इंडियन बुस्टर्ड आर इन डेंजर ऑफ टोटल एक्सटिंक्शन. और हमने देखा ना कि इन जानवरों की संख्या कम होने की कगार पर है. वो कौन कौन से जानवर हैं? जैसे कि आपने क्या देखा? चीता देखा, राइनोसोरस देखा, मास्क डियर देखा, और क्या देखा? इंडियन बुस्टर्ड भी देखा. ठीक. इन ऑर्डर टू सेव वाइल्ड लाइफ, हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हमारी सरकार के तरफ से भी कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं.
In order to save wildlife, our government has taken several steps. The government has set up 86 national parks. इसके लिए हमारी सरकार ने 86 नेशनल पार्क्स की स्थापना की है, बनाई है। In these parks, wildlife, और इस पार्क्स में क्या है, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड नेचुरल ब्यूटी आर प्रिजर्व। इन सब सारी चीज़ों को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। टाइगर्स आर प्रिजर्व इन द कॉर्बेट पार्क। आपने देखा ना मैप में, यहाँ देखिए कॉर्बेट पार्क आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या प्रिजर्व करके रखा जाता है, यस, टाइगर्स आर प्रिजर्व इन कॉर्बेट पार्क। देयर इज अ पार्क फॉर राइनोसरस इन आसाम। आपने आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क देखा होगा, आप वहाँ पर भी किया जाता है। There are also wildlife and bird sanctuaries, about 480, where both rare birds and animals live and roam about without any fear of being hunted। और आपने देखा होगा कि कई सारे कुछ जो कि रेयर, जो बहुत कम जिनकी संख्या रह गई है, उनमें क्या है, कुछ बर्ड्स भी हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं, उनको हम बड़े ही सुरक्षा के साथ रखे हैं। और उनको क्या होता है, उनको इतनी फ्रीडम दी जाती है कि जिस तरह से वो जंगलों में रहते हैं, ठीक उसी तरह से उन्हें पार्क्स में भी रखा जाता है। ठीक, देयर इज अ लार्ज बर्ड सेंचुरी एट भरतपुर। Many zoological parks have also been set up by the government in different parts of India to preserve wildlife। हमने कई जगह नेशनल पार्क्स बनाए हैं जहाँ पर हमारे बर्ड्स, एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जा सके। द बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजेज द गवर्नमेंट। जो बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है, वो भी कभी कभी गवर्नमेंट को सलाह देती है। क्या सलाह देती है, as to what steps it should take to preserve the wildlife। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं और कौन कौन से उपाय इसके लिए अच्छे हैं, कैसे करना चाहिए, कब से करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, सारे सुझाव बोर्ड गवर्नमेंट को देती है। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। टुमारो वी विल डिस्कस द अदर para of the same topic. Thank you.